سامعین، آج میں جس عنوان کے اوپر مختصر انداز میں خطاب کرنے والا ہوں وہ ہے حقوق الزوجین، یا اس کو اگر عام بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایک ہسبینڈ کو، پتی کو، شوہر کو اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اور ایک بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کے سامنے آج بات رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ادھر لے کر آؤں، یہ یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی، پتی پتنی، ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ دنیا کے تمام خوبصورت رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کی خوبصورتی اور اس کی نزاکت کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 2 سورہ البقرہ کے اندر بڑی ہی خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مردوں سنیے، اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردوں تم اپنے بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے، اپنے مرد کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے لباس ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ اے مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، اور اے عورتوں تم اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے پتی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تم لباس ہو۔ تو کیا کرنا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہے۔ لیکن اتنی بہترین تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے تعلق سے فرمائی، لباس کیوں کہا اس کو سائڈ میں رکھیے۔ آئیے دوسری آیت پر ذرا غور کیجیے، کیونکہ بڑے ہی مختصر انداز میں بیان کرنا ہے۔ دوسری آیت پر ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اس رشتے کو سامنے رکھیے اور اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پارہ 21 سورۃ الروم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ پھر سے غور کیجئے، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ سے سوال کیجئے کہ اے اللہ ہم مرد تو ایسے بھی خود تھے، ہمارے لیے ہمارے بیوی کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے لیے عورتوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ بیوی تو شوہر کے لیے سر درد ہے، بیوی تو شوہر کے لیے مصیبت ہے، بیوی تو شوہر کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ بولتے ہیں نا بیوی ہمارے لیے مصیبت، ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے بھائی شادی مت کرو، اگر شادی کرو گے تو تمہاری زندگی جھنڈ بن جائے گی، تمہاری زندگی جھنڈ ہو جائے گی، شادی مت کرو، شادی مطلب مصیبت، کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو صلاح دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بیوی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے مصیبت نہیں، ہمارے لیے سر درد نہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں وقت بڑا ہی کم ہے میرے پاس، اس لیے میں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ اے سنگل پور کی سرزمین پر پہنچے ہوئے تشریف لائے ہوئے لوگوں سنو، وہ لوگوں سنو، اگر رات کے ٹائم مان لو تمہارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، پیسہ ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ نوجوانوں سنو میری باتوں کو، میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کی زندگی میں چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ رات کے 12 بجے آپ راستے کے کنارے بیٹھ کر موبائل میں پبجی کھیل رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے بھائی کیا بات ہے، رات کے 12 بجے راستے کے کنارے بیٹھ کر
हॉकी खेल रहा हूँ, कैरम बोर्ड खेल रहा हूँ, बात क्या? जवाब आता है क्या करें साहब, रात को नींद नहीं आती है। रात को नींद किसे आती है? जिससे सुकून हो जिसकी जिंदगी के अंदर, और जिसकी जिंदगी के अंदर सुकून ना हो उसकी जिंदगी में नींद नहीं आती है। अगर आपको ये लगे कि मैं कभी कभार डिप्रेशन में चला जाता हूँ, रात को नींद नहीं आती है, 2 बज जाता है, 12 बज जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों आप निकाह कर लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लोगों, अगर हमने तुम्हारी बीवी को इसलिए बनाया ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। आगे गौर कीजिए, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह, अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी बात कही गई है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह, मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, इस आयत पर गौर कर लेना। इस आयत को समझने की हमें और आपको जरूरत है, इस आयत पर गौर करने की हमें और आपको जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह, कहे लोगों, ये जो मियां बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है, मियां बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। अल्लाह ये फरमाता है लोगों, आपके घर में आपकी बीवी है, आप अपनी बीवी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और आपकी बीवी आपको अपनी जान से ज्यादा चाहती है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह, क्या है कटियार के लोगों सुनो, मियां बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ना एक बड़े काम की चीज बताकर जा रहा हूँ, एक बड़ी काम की चीज, गौर करना इस आयत पर। क्या है? लोग सवाल करते हैं मौलाना साहब, इस्लाम में लव मैरिज करना जायज है? सुनिए नौजवानों, आप सुनिए मेरी बातों को, आयत को वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह, इसको सामने रखते ये बात कर जा रहा हूँ। नौजवान सवाल करते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, व्हाट्सएप में, फेसबुक में वगैरह में, कि मौलाना साहब क्या इस्लाम में लव मैरिज करना जायज है? एक मसला याद रखिएगा, इस्लाम में ना लव मैरिज नहीं है। फिर से सुनिए, आपस में बातें ना करें, सुनिए, इस्लाम में लव मैरिज नहीं है, इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज है। इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज है। निकाह से पहले इस्लाम के अंदर मोहब्बत नहीं, बल्कि निकाह के बाद इस्लाम के अंदर मोहब्बत है। और नौजवानों ये भी मसला याद रखो, निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है ना, जो आज हम फोन में रात के 12 बजे, बाबू खाना खाया, मेरा बाबू सोया, मेरा बाबू ये क्या, मेरा बाबू ये क्या, ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं, रात के 2-2 बजे तक, रात के 12-12 बजे तक फोन में बतियाते रहते हैं, फोन में बात करते रहते हैं। ये जो मोहब्बत है ना, निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है, ये क्या है? शैतान की तरफ से ये मोहब्बत पैदा होती है। सुन लो, निकाह से पहले लड़की के साथ बात करना, निकाह से पहले लड़की के साथ लगाव होना, निकाह से पहले लड़की के साथ मोहब्बत होना, मेरे भाइयों, ये मोहब्बत शैतान की तरफ से पैदा होती है। तभी तो देखेंगे कि निकाह से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है, किसी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कमरा से शुरू होती है ये मोहब्बत, और किसी होटल के कमरे में जाकर, किसी वो होटल के कमरे में जाकर ये मोहब्बत दम तोड़ देती है। क्यों? इसलिए कि ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से नहीं, ये मोहब्बत शैतान की तरफ से पैदा होती है। और अल्लाह फरमाता है निकाह के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है, वो मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। इसलिए देखेंगे निकाह के बाद जो मोहब्बत होती है, ये हमेशा हमेशा पटरी के ऊपर चलती रहती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए नौजवानों, निकाह से पहले प्यार मत करो, निकाह के बाद अपनी बीवी से प्यार करो। अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह, ऐ लोगों, मियां बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत मैं अल्लाह खुद पैदा करता हूँ। अल्लाहू अकबर, मियां बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है। आइए एक हदीस और सुना के जाऊं मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होगा कि ये शैतान जो हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये शैतान, ये इब्लीस जो हमें और आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाना चाहता है, हम और आपको गुमराह करना चाहता है। इब्लीस का भी ये सबसे ज्यादा महबूब अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है कि एक बीवी को शौहर से अलग कर दिया जाए और शौहर को अपने बीवी से अलग कर दिया जाए। हदीस सुनिए, सही मुस्लिम की हदीस है, इमाम मुस्लिम इसको सही मुस्लिम के अंदर लेकर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मियां बीवी का जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जो
इस हदीस को सामने रखी। इब्लीस समुंदर के पानी के ऊपर अपना तख्त लगाता है, अपना दरबार लगाता है और चेलों को दुनिया के अंदर भेजता है, लोगों के पास भेजता है कि जाओ लोगों को गुनाह पर आमादा करो। फिर शाम के टाइम वो लोग अपने सरदार के पास आता है, अपने गुरु के पास आता है और आने के बाद पूरे दिन भर उसने क्या किया उसकी रिपोर्ट पेश करता है। एक आया, कहा कि गुरु यानी इब्लीस को, ऐ गुरु, ऐ हमारे सरदार, आज हमने एक मुसलमान को हमने नमाज से गाफिल कर दिया। आज हमने एक मुसलमान को फजर की अज़ान हो रही थी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, फजर की अज़ान हो रही थी, मुअज्जिन उसको नमाज की तरफ बुला रहा था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तब हमने उसके ऊपर नींद को गालिब कर दिया और हमने उसको नमाज से गाफिल कर दिया। गुरु कहता है तू साइड में हुआ। और एक आया, कहा हमने किसी को शराब पीने पर मजबूर कर दिया, तू भी हट जा। इसी तरह करते करते एक आया और कहा कि हमारे गुरु, इस रिश्ते को सामने के बार बार बता कर जा रहा हूं, ऐ हमारे गुरु, हमने मियां बीबी के दरमियान हमने झगड़ा करा दिया, हमने मियां बीबी के दरमियान हमने तनाव पैदा कर दिया, हमने एक दूसरे के लिए उकसा दिया, हमने इतना झगड़ा कराया और उन दोनों को यहाँ तक नहीं छोड़ा जब तक उन दोनों के दरमियान तलाक ना हो जाए, जब तक उन दोनों के दरमियान डिवोर्स ना हो जाए। ऐ हमारा गुरु, ऐ हमारा सरदार, हमने मियां बीवी के दरमियान तलाक करा दिया। सही मुस्लिम की हदीस है मेरे प्यारे साथियों, वो शैतान, वो गुरु अपने चीला को गले से लगाता है और लगाने के बाद कहता है नि'मा अंता, तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। हदीस से क्या पता चला? जो मियां बीवी का रिश्ता है ना, इस रिश्ता को बर्बाद करना, मियां बीवी का रिश्ता तोड़ना, मियां बीवी का रिश्ता खत्म करना, ये शैतान का सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब काम है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए तो अल्लाह के प्यारे रसूल मुस्नद अहमद के हदीस है और इस हदीस को अल्लाह मलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई इंसान अपनी बीवी के ताल्लुक से अपने उसके हस्बैंड को उकसाए या फिर हस्बैंड के ताल्लुक से हस्बैंड के बारे में अपनी बीवी को उकसाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो मुसलमानों में से नहीं है। कौन मुसलमानों में से नहीं है? जो बीवी को शौहर के खिलाफ भड़काए और जो शौहर को बीवी के खिलाफ भड़काए। और आगे आइए, शैतान चाहता है कि मियां बीवी के रिश्ता को तोड़ दिया जाए, शैतान चाहता है कि मियां बीवी के रिश्ता को खत्म कर दिया जाए और इस्लाम चाहता है कि नहीं, मियां बीवी का रिश्ता ना टूटे, मियां बीवी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों अब गौर कीजिए, इस्लाम ने, सुनिए, आज हम 10 बच्चे के बाप हो गए मेरे भाइयों, सुनिए मेरी बातों को, 15-15, 16-16 बच्चा आज हमारे घर में है, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया आज हमारा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये जानते नहीं है कि हमारे ऊपर बीवी का क्या हक है और हमारी माँ और बहनें जानती नहीं है कि हमारे ऊपर हमारे शौहर का क्या हक है। आज देखिए, आज हमारे गांव में समाज में बार बार पर डिवोर्स का वाकया सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, तलाक का मसला हमारे सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों इतना ज्यादा तलाक का मसला और तलाक का वाकया हमारे सामने आ रहा है? इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि आज लोगों को नमाज का मसला तो मालूम है, लोगों को रोजे का मसला तो मालूम है, लोगों को ज़कात का मसला तो मालूम है, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि हमें बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। और आज हमारे समाज में रहने वाली मेरी माँ और बहन को यह मालूम नहीं है कि हमारा शौहर का हमारे ऊपर क्या हक है। इस्लाम ने कुछ गाइडलाइंस हमें दिए, इस्लाम ने कुछ उसूल हमें दिए, इस्लाम ने कुछ कानून हमारे लिए बनाए और दुनिया वालों से कहा कि दुनिया वालों, सिंघालपुर वालों, मुसलमानों, याद रखो, अगर इस्लाम के इस उसूल को और इस गाइडलाइंस को अगर फॉलो करके अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर चलती रहेगी। और अगर तुमने इस्लाम के उसूल के खिलाफ, इस्लाम की इन गाइडलाइंस के खिलाफ अगर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी तो फिर तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। दो हक बयान करने, 15-20 मिनट का टाइम है, दो हक। बीवी को कैसा होना चाहिए, बीवी को अपने हस्बैंड के लिए कैसी होनी चाहिए और आपको अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। आइए सबसे पहले बीवी के ताल्लुक से, मेरी माँ बहनों सुनिए, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ लड़ती हैं,
झगड़ती हैं तो आप मेरी बातों को सुनिए कि आपके ऊपर आपके हस्बैंड का क्या हक है और आपको अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए आपको कैसा होना चाहिए। 3-4 हदीस में जल्दी मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूँ। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ पंडाल के पीछे बैठी हुई मेरी माँ और बहनों सुनो, मैं तुम्हें ये हदीस सुनाकर आज जाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, फिर से सुनिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर अगर किसी दूसरे के सामने सजदा करना जायज होता तो मैं नबी बीवियों को हुक्म देता कि जाओ और जाकर तुम अपने शौहर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने जाकर तुम सजदा करो। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनों गौर करो कि शौहर का कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि जाओ और अपने शौहर के सामने जाकर सजदा करो। और एक हदीस सुनते जाइए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़ ज़ौजिहा। वो मेरी माँ और बहनों, नबी अकरम बयान फरमाते हैं कि कोई भी औरत, फिर से सुनिए, अल मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह, कोई भी औरत उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का हक नहीं अदा कर सकती जब तक वो अपने शौहर का, अपने पति का और अपने हस्बैंड का हक अदा न कर ले। कितनी बड़ी बात कही गई है शौहर के ताल्लुक से। मेरी माँ या बहनें, आप उस वक्त तक अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकती। अल मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़ ज़ौजिहा, जब तक कि आप अपने शौहर का हक ना अदा कर दे। और हदीस सुनते जाइए, कल क़यामत के दिन ऐसी औरत से कहा जाएगा कि इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा व सामत शहरा व हफ़िज़त फ़र्जहा व अताअत ज़ौजहा, जो अपने शौहर की इताअत करती है, कल क़यामत के रोज ऐसी औरत से कहा जाएगा कि देखो जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं, तुम इन दरवाजों को देखो और तुम जिस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहो, जिस दरवाजे से जन्नत के अंदर प्रवेश करना चाहो, उस दरवाजे से तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, उस दरवाजे से तुम जन्नत के अंदर प्रवेश कर जाओ। ये शौहर का मकाम है मेरे प्यारे साथियों और मेरी माँ और बहनों। इसी तरह और एक हदीस सुनते जाइए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस बताने जा रहा हूँ औरतों के लिए। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, लेडी आई किसी काम की वजह से। जब वो अपने काम से फारिग हो गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ औरत, क्या तेरा निकाह हो गया? ऐ औरत, क्या तेरी शादी हो गई? क्या तुम्हारा खावंद मौजूद है? उस औरत ने जवाब दिया, हाँ मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया, मेरा खावंद मौजूद है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ औरत, बताओ कि तुम्हारा सुलूक तुम्हारे हस्बैंड के साथ कैसा है? उस औरत ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, जहां तक मुमकिन हो पाता है मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ, अच्छे तरीके से मैं अपने हस्बैंड के साथ पेश आती हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत तू देख लेना सही से, तू देख लेना कि तेरा सुलूक और तेरा बिहेवियर तेरे हस्बैंड के साथ कैसा है। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फइन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। मेरे माँ और बहनों सुन ले, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं अपने हस्बैंड को राजी कर लीजिए, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं अपने हस्बैंड को खुश कर लीजिए, और अगर जहन्नम के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके हस्बैंड की नाराजगी ही आपके जहन्नम की जाने की सबसे बड़ी वजह बनी। और एक हदीस सुनते जाइए, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि अगर किसी औरत की मौत अगर इस हाल में होती है कि उसके ऊपर उसका शौहर राजी है, अगर किसी औरत की मौत इस हाल में आती है कि उसका शौहर उसके ऊपर राजी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरत दखलतिल जन्नह, कल क़यामत के दिन ऐसी औरत जन्नत के अंदर जाएगी। कौन सी औरत? वो औरत कि हस्बैंड उसकी मौत के टाइम हस्बैंड उसके ऊपर राजी हो। इस्लाम ने शौहर को ये मकाम दिया है मेरे प्यारे साथियों।
मेरी माँ और बहनों, ये भी सुनते जाइए शौहर के ताल्लुक से। अगर शौहर आपको बिस्तर पर बुलाए, आज होता है आज हमारे समाज में कि बीबी नाफरमानी करती है, अगर उनको अपने पास बुलाते हैं हस्बैंड, उनको अपने बिस्तर पर बुलाते हैं, तो बीबियाँ उज़्र पेश कर देती है, खामखा बहाना करती है, अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती है। तो मेरी माँ या बहनें सुनिए, इस्लाम क्या कहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा दआ रजुलु इमरातु इला फिराशिही, कि अगर कोई मर्द किसी औरत को, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और अगर वो ना आए, इनकार कर दे, मेरे माँ बहनें सुनिए, अगर आपका शौहर, आपका हस्बैंड, आपका पति अगर आपको अपने पास बिस्तर पर बुलाए और आप ना आए और आपका शौहर आपसे नाराज होकर रात गुजार रहा है, तो हदीस का अल्फाज यहाँ तक है, लअनतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, के आसमान के फरिश्ते आपके ऊपर लानत की बरसात करेंगे यहाँ तक कि वो सुबह ना हो जाए। तो पता ये चला कि अगर शौहर बीवी को अपने पास बुलाए और बीवी शौहर के पास ना आए और शौहर नाराज हो जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरत के ऊपर आसमान के फरिश्ते भी क्या करते हैं, लानत करते हैं ऐसी औरत के ऊपर, ऐसी औरत के लिए बद्दुआ करते हैं फरिश्ते। हदीस का अल्फाज है, वकानत अला तन्नूर, कि अगर हस्बैंड बीवी को बुलाए, अगर बीवी किचन में हो, किचन को हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, कोई बता सकते हैं किचन को क्या बोलते हैं? हैसल घर बोलते हैं। अगर वकानत अला तन्नूर, अगर बीवी रोटी बना रही हो, सब्जी बना रही हो, किचन में काम में मसरूफ हो, शौहर ने तलब कर लिया कि आओ मेरे पास, इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है, बीवी को किचन से आना पड़ेगा अपने हस्बैंड के पास। क्यों? अगर हस्बैंड नाराज हो गया तो अल्लाह भी नाराज, हस्बैंड अगर नाराज हो गया तो फरिश्ते भी ऐसी औरत के ऊपर लानत करते हैं। और क्या बताया मेरे माँ बहन, आपका हस्बैंड, आपके हस्बैंड का मकाम देखिए कि आपका शौहर आपके घर में मौजूद है, आप नफली रोजा नहीं रख सकते। औरत के ऊपर ये, औरत के लिए ये जायज ही नहीं है कि शौहर के इजाजत के बगैर बीबी नफली रोजा रखे, नहीं, किसी औरत के लिए जायज नहीं है। ये मकाम इस्लाम ने एक शौहर को, एक पति को दिया है बीवी के ऊपर। इसलिए मेरी माँ बहनें, अगर आपका शौहर घर में रहे तो आप नफली रोजा तब तक ना रखें जब तक आपके शौहर की तरफ से परमिशन ना आ जाए, इजाजत ना आ जाए, आदेश ना आ जाए। इसी तरह आप आज हमारे समाज में देखिए, शौहर घर में मौजूद है, बीवी का जहां दिल किया घर से निकल गया, शौहर को पता ही नहीं है, शौहर फोन कर रहा है, अरे कहाँ है तू? बीवी कहती है मैं तो कटिहार आ गई। अरे कटिहार चली गई, मुझे अभी तक पता नहीं चला। मेरी माएँ बहनें सुने, इस्लाम कहता है कि आप शौहर के इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। अल्लाहू अकबर, इस्लाम ने शौहर को ये मकाम दिया कि कोई भी बीवी शौहर के इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। एक हदीस सुना दूं, फिर शौहर के ऊपर आ जाऊंगा, तब तक मेरा टाइम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपनी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि दूसरे मुकर्रर आपकी खिदमत में आपके सामने आने वाले हैं। अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया, मेरी माँ बहन, इस हदीस को भी बड़ा सही हदीस है, सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन औरत कौन है? या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इदा नज़र, अल्लती तसुर्रुहु इदा नज़र, वो औरत सबसे बेहतरीन औरत है दुनिया के अंदर। कौन औरत? कि जब उसका शौहर अपनी बीवी को देखे तो शौहर खुश हो जाए, शौहर का मिजाज खुश हो जाए, शौहर की तबीयत खुश हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी औरत पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है। अल्लाह के प्यारे से फरमाते हैं। दूसरी बात, और कौन सी औरत? जो शौहर की इताअत करे, जो शौहर की फरमाबरदारी करे। अगर शौहर बीवी को हुक्म दे तो बीवी उस बात को, उस हुक्म को बजा लाए, उस हुक्म का पालन करे, शौहर की इताअत करे। ऐसी औरत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसी बीवियों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये औरतें दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है। बीवी के ताल्लुक से बता दिया, शौहर के ताल्लुक से बता दिया, अब मैं आपको बता कर जा रहा हूँ कि आपको कैसा होना चाहिए एक हस्बैंड की शक्ल में। आप भी अब सुनते जाइए जी, ये ज्यादा जरूरी है, आप ये सुनिए, क्योंकि औरतों का, शौहर का हक का बयान करते हैं, बीवी का हक नहीं। आप सुनिए, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, अगर शादी नहीं हुई है ना, फिर भी सुनिए,
हो गई है, क्योंकि आज हमें मालूम भी नहीं है। सुनिए, एक शौहर को अपने हस्बैंड के, एक शौहर को अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बीवी को गुलाम न समझे। बीवी को पैर की जूती, आप समझते हैं, बीवी को पैर की जूती समझते हैं। ये गुलाम है, पैर की जूती है, बात बात पर मारना, बात बात पर गाली देना। सुनते जाइए, पहली बात, आप अपनी बीवी को रखेल न समझे, आप अपनी बीवी को पैर की जूती और गुलाम न समझे। बीवी के साथ आप भलाई करें। कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ फइन करिहतमुहुन्ना फअसा अन तकरहू शैअ व यजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। आप अपनी बीवी के साथ भलाई करें। हो सकता है कि वो आपको नापसंद हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बहुत सारी भलाई रखी हो। आइए और एक हदीस सुनते जाएंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मर्दों सुनो, अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुका। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मोमिनों के अंदर सबसे बेहतरीन कौन है, मुसलमानों के अंदर सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है। अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुका, मुसलमानों के अंदर सबसे बेहतरीन मुसलमान, मोमिनों के अंदर सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनका अखलाक बेहतर हो, जिनका चरित्र बेहतर हो। अब सुनो, अल्लाह के नबी ये भी बयान फरमाते हैं, वो खियारुकुम खियारुकुम निसायुकुम। क्या ऐ सिंगापुर वालों सुनो, ऐ सिंगापुर जलसा सुनने के लिए आने वालों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो खियारुकुम खियारुकुम निसायुकुम। क्या ऐ लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के नजदीक अच्छा हो। दूसरी हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअली व अना खैरुकुम लिअली। क्या लोगों, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के नजदीक अच्छा हो। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहल के नजदीक अच्छा हो। फिर नबी ने फरमाया, वो अना खैरुकुम लिअली। क्या मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे साहबा, ऐ मुसलमानों, मुझे देखो जो मेरे बारे में ये बताया गया, जो नबी के बारे में बताया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस नबी को देखो, वो नबी बयान फरमाते हैं कि वाना खैरुकुम लिअली के लोगों, मैं तुम सबसे बेहतर हूँ अपनी बीवियों के नजदीक, सबसे बेहतर हूँ। पता क्या चला, मिसाल देकर समझाऊं। चलिए एक मिसाल दे ही जाता हूँ, क्योंकि मैं मिसाल से बच रहा हूँ क्योंकि वक्त बड़ा कम है मेरे पास। मिसाल क्या है, एक आदमी है सिंगापुर का रहने वाला, बड़ा अच्छा है। मेरे घर तो मंझेली ये सब जानते हैं। मंझेली वाले कहते हैं, यार सिंगापुर का जो हाजी साहब है ना, वो हाजी साहब बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक इंसान है। पूरी दुनिया हाजी साहब का एहतराम करती है। सब कोई हाजी साहब का जब नाम लेते हैं तो सम्मान से लेते हैं, क्योंकि हाजी साहब बड़े अच्छे हैं। लेकिन हाजी साहब अपनी बीवी के नजदीक अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं माना जाएगा हाजी साहब को। इस बात को यूं समझिए कि अगर पूरी दुनिया एक इंसान को कहे कि नहीं ये बेहतर इंसान है, ये अच्छा इंसान है, और सिर्फ उसकी एक बीवी अगर ये गवाही दे दे, ये कह दे कि नहीं मेरा शौहर अच्छा नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, पूरी दुनिया की बात ठुकरा दी जाएगी और उसकी बीवी की बात को तस्लीम कर ली जाएगी। और ये मैं ही बताता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुका व खियारुकुम खियारुकुम निसाइकुम। वही सबसे बेहतरीन इंसान है तुम में से जो अपनी बीवी के नजदीक अच्छा हो। चलिए आइए दूसरी चीज, बीवी का हक आपके ऊपर क्या है। एक सहाबी रसूल है हजरत मुआविया कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी प्यारी हदीस है, इस हदीस को भी सुनते जाइए। हजरत मुआविया कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं, आने के बाद सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, आप हमें बताइए कि हमारे ऊपर हमारी बीवियों का क्या हक है, हमारे ऊपर हमारी बीवियों का क्या अधिकार है। ये अल्लाह के रसूल, आप बताइए कि हमें अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए, हमें अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व अंतुतिमहा इज़ा तइनता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तजरिबिल वजहा वला तुकब्बी वला ताजुर इल्ला फिल बैत। ओ लोगों सुनो कि एक हस्बैंड को अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व अंतुतिमहा इज़ा तइनता, ये बीवी का हक है हमारे ऊपर। क्या हक है? तुम जो खाओ वो बीवी को खिलाओ। समझने की जरूरत है मेरे भाई, तुम जो खाओ वो बीवी को खिलाओ। अब बहुत सारे लोग मसले में पड़ गए,
घर में गए, खुद तो बीड़ी पीता है, बीवी को भी बीड़ी पिलाना शुरू कर दिया कि चल तू बीड़ी पी। खुद तो शराब पीता है, चरस पीता है, गंजा पीता है, घर में गया बीवी को भी खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। कहा अरे नहीं, ये हराम है, ऐसा नहीं खा सकते। कहा नहीं, खाना पड़ेगा। बोले क्यों खाना? ये तेरा हक है मेरे ऊपर। बोले कैसा हक? बोला मौलवी तनवीर ने बताया गया कि जो तुम खाओ वो बीवी को खिलाओ। मेरे भाइयों, ये बताने का मतलब, अल्लाह के नबी के बताने का मतलब ये नहीं है कि वो जो तुम खाओ वो बीवी को खिलाओ। इसका मतलब ये है कि आपके घर में आपकी बीवी सूखी दाल और रोटी खा रही है, दाल और सूखी रोटी खा रही है, आप कटिहार जाकर, बस्तौल जाकर, इधर पूर्णिया जाकर, सोनौली जाकर मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी खा रहे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप जो खाते हैं अपनी बीवी को खिलाना पड़ेगा। आपकी बीवी घर में दाल रोटी खाए और आप दोस्तों के साथ जाकर बाहर में गुलछर्रे उड़ाए और घर में सब्जी खरीद कर ना लाए, घर में एक दिन मटन खरीद कर ना लाए और आप हर दिन जाकर मटन खाए, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मेरे प्यारे साथियों। कौन? नबी फरमाते हैं जो तुम खाओ वो बीवी को खिलाओ और जो तुम पहनो वो बीवी को पहनाओ। यानी आप जितना बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं उतना बेहतरीन कपड़ा आप अपनी बीवी को भी पहनाया करें। ऐसा नहीं कि जो तुम पहनो, आप तो रास्ते में चड्डी पहनकर घूम रहे, बीवी को भी चड्डी पहनना शुरू करा दें कि चलो तुम भी घूमो, मैं ऐसा करूं। नहीं, आप जिस क्वालिटी की कपड़ा पहनते हैं उस क्वालिटी की कपड़ा बीवी को भी। इसका मतलब है आप जो अच्छा पहनते हैं बीवी को भी आप अच्छा पहनाइए। और एक बात, क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया, खास करके शेरशाहबादी जो बिरादरी के लोग हैं ना, ये इस पॉइंट को, इस हदीस को जरा गौर से सुनिए। वला तजरी बिल वजहा, आप अपनी बीवी के चेहरे पर मत मारिए। हाँ, आप तो खुश हो गए ना, मौलाना साहब मारूंगा, चेहरा छोड़कर बाकी जो हिस्सा है उसमें मारूंगा। ऐसा हो सकता है ना? होगा कि नहीं होगा? चेहरा, अल्लाह के नबी वला तजरी बिल वजहा, तुम चेहरा पर मत मारो। तो हम क्या करेंगे? चेहरे पर नहीं मारेंगे, उनके जिस्म में मारेंगे, जैसे आज हम और आप मारते हैं बीवी को। और आपको जानते हैं, बड़ी हैरत होती है ऐसे मुसलमानों को देखकर, बड़ा अफसोस होता है, मलाल होता है मेरे भाइयों कि आज हम अपनी बीवी को मारकर खुद को मर्द समझते हैं। बीवी को मारकर खुद को हम और आप मर्द समझते हैं। ऐसा होता है ना? वो कटिहार गया, 2 जूता खा के आया, बिल्ली बन के, कुत्ता बन के 2 जूता खा के आ गया, वहां पे कुछ नहीं बोल पाया, खा लिया जूता। घर में आया, बीवी ने कहा कि भाई क्या बात है, आपका कपड़ा फटा हुआ है पीछे से, क्या बात है, कोई लफड़ा उकड़ा, कोई झगड़ा उगड़ा, किसी से लड़ाई हुई है? अब शौहर क्या करता है, जूता खोलकर बीवी को मारना शुरू कर देता है। बाहर तो वो चूहा बनकर, बिल्ली बनकर, कुत्ता बनकर लात खा रहा था, घर में आया तो बाहर का गुस्सा बीवी के ऊपर उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप बीवी घर में शेर बन जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया करें, नहीं हाथ उठाया करें, क्योंकि बीवी का आपके ऊपर हक है। अबू दाऊद की सही हदीस है कि सहाबा के जमाने में सहाबा किराम अपनी बीवियों के ऊपर हाथ उठा दिया करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया कि मेरे सहाबा बीवियों के ऊपर हाथ ना उठाया करो। अबू दाऊद की हदीस है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपने हम लोगों को मना किया बीवी को मारने से, हमने बीवी को मारना छोड़ दिया, लेकिन हमारी बीवियां बहुत ज्यादा बगावत और सरकशी पर उतर आई है। फिर अल्लाह के नबी ने परमिशन दिए थे कि जाओ हल्का सा मार देना। फिर उसके बाद वही औरतें शिकायत लेकर जब नबी के पास आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने खुतबा दिया, सहाबा के सामने तकरीर फरमाई और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों सुनो, जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, जो अपनी बीवी को मारता है, वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है। बीवी को मारने वाला इंसान अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए मेरा पैगाम है कि आपकी बीवी का आपके ऊपर हक है। और भाइयों, अपनी बीवी के ऊपर ना मारा करे, ना जुल्म करे, ना टॉर्चर करे, बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया करे। अरे वो बीवी जिसने अपनी माँ को छोड़कर आपके पास आई हो, वो बीवी जिसने अपने बाप को छोड़कर आपके पास आई हो, वो बीवी जो अपने खानदान को छोड़कर आपके पास आई हो, मेरे प्यारे साथियों, उस बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया करे, उस बीवी का भी एहतराम करे, उस बीवी की भी इज्जत करे, उस बीवी का भी आप सम्मान करे। और क्या फरमाया, वला तुकब्बी, आज हम और आप बात बात पर अपनी बीवी को उसकी माँ बहन खींच कर गाली देते हैं। सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बीवी का हक यह है कि कोई शोहर, कोई मर्द अपनी बीवी को गाली ना दे, वला तहजुर इल्ला फिल बैत। और ये भी बीवी का हक है आपके ऊपर, क्या करे कि अगर बीवी के साथ, सुनिए मसला को, बीवी के साथ लड़ाई हो गई, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, आज हम क्या करते हैं,
थोड़ी सी बात हुई, बाहर आए, दोस्तों के सामने बताना शुरू कर दिए, दोस्तों के सामने बताना शुरू कर दिए, पूरा मोहल्ले के अंदर हमने बता दिया हमारी बीवी ऐसी है, हमारी बीवी ऐसी है। मेरे प्यारे साथियों, नहीं, बीवी का हक है आपके ऊपर कि अगर आप और आपकी बीवी के दरमियान अगर कुछ अनबन सी हो जाती है, अगर कुछ कही सुनी हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो उसको घर के अंदर, कमरे के अंदर उसको खत्म कर दीजिए, कमरे के अंदर उसको मिटा दीजिए। ये कौन बयान फरमाते हैं? ये अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। अब आइए, आपकी बीवी का आपके ऊपर हक क्या है? आपकी बीवी का आपके ऊपर यह भी हक है कि मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी बीवी को बुराई से बचाएं। ये बीवी का हक है आपके ऊपर कि आप अपनी बीवी को बुराई से बचाएं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत उमर सवाल करते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर यह आयत नाज़िल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ लोगों, तुम खुद भी जहन्नम के आजाब से बचो और अपनी बीवी को भी, अपने अहल अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो हजरत उमर ने सवाल किया अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल, आप बताइए कि हम खुद जहन्नम की आग से बचे। ये तो पता चलता है, लेकिन बीवी को, अहल अयाल को जहन्नम के आग से कैसे बचाए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम उसको भलाई का हुक्म दो और उनको तुम बुराई से रोको। तो बीवी का हक है शौहर के ऊपर, बीवी का हक है हमारे ऊपर कि हम खुद भी जहन्नम के आजाब से बचे और अपनी बीवी को भी जहन्नम के आजाब से बचाएं।